Welcome to the Competitive Scholar, your trusted guide for CSS guidance. Today we are beginning our journey into one of the most important topics of the CSS exams, prescient composition. This paper tests your command of the English language, your ability to read critically, write precisely, and express ideas in a clear and structured manner. Next, we will discuss about the past papers of CSS Prezi and English composition of year 2023 and 2025. This paper is divided into several parts including Prezi writing, comprehension, vocabulary, sentence correction, and creative writing including essay, paragraph. Scoring well here not only boosts your overall marks but also strengthens your performance in other written papers, especially in essay or English papers. Next, some skill you needed. You have to succeed, you must master a few essential skills like careful reading, critical thinking, grammar accuracy, the art of summarizing long passages without losing their original meaning of the sentences, lines, or paragraphs. Now you can see the paper of 2023. The first question is write Prezi of the following passage and suggest a suitable title. There is a long paragraph and you have to write it carefully, minimum for twice. And you have to also suggest a suitable title for this and also write Prezi for this passage. Next question is read following passage carefully and answer the questions given at the end. There is a long passage of comprising 1.5 page, this page and the next page. So you have to read it carefully and then you have to answer of your composition one by one. Next question is correct only 5 of the following. There are some sentences you have given and you have to answer by rewriting the lines or sentences into the grammatically proofreading sentences. Next is punctuation, and there is a paragraph and you have to punctuate it according to the punctuation marks or punctuation rules of grammar English. And its second part is rewrite the following sentences, only 5 after filling in the blanks with appropriate preposition. You should know the proper rules of preposition and where the lies of preposition and where we use properly. So you have to fulfill only 5. Next, second last question is use only 5 pair of words in sentences clearly illustrating their meanings. There are some pair of words given and you have to use these words into your sentences along with their meanings, English meanings, not Urdu meanings. Alright, last question is translate the following into English by keeping in view figurative and idiomatic expressions. यहाँ पे उर्दू के अंदर एक पैराग्राफ दिया गया है, ठीक है, तो आपने उसके डिफरेंट उसके अंदर इडियम्स यूज़ हुए हैं, डिफरेंट फिगर्स यूज़ हुए हैं, उसे ट्रांसलेट आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है। ये नहीं कि कुछ इसके अंदर इडियोमेटिक फ्रेज़ अगर लिखी हुई है तो आपने उसकी भी ट्रांसलेशन कर दिया, बल्कि प्रॉपर वहाँ पे इडियम लिखेंगे। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। ये 2023 का पेपर है। इसका सलूशन भी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में बनाएं या फिर वन बाय वन हम फर्दर जो है जितनी हमारी सीरीज़ इसकी स्टार्ट हो रही हैं प्रेसिडेंट राइटिंग की आज से, तो हम कोशिश करेंगे कि वन बाय वन जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब का पोर्शन जो है वो एक एक वीडियो के अंदर क्लियर किया जाए, यानी नेक्स्ट जो है सेपरेटली हर एक चीज़ की वीडियो बनाई जाए जिसमें आपको प्रेसी के रूल्स, कंपोजिशन के रूल्स कि किस तरह से उसके रूल्स हैं और किस तरह से उसे यूज़ करते हैं, और ये डिफरेंट पेयर ऑफ वर्ड्स, प्रपोजिशन के रूल्स, ये सारे जो हैं वन बाय वन उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वी हैव द पेपर ऑफ 2025 दिस ईयर। यू कैन सी द MCQs पोर्शन इज़ जस्ट ओनली कंप्राइजेज बाय द सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। 20 MCQs देखें आपके सामने हैं, जिसमें से 10 MCQs जस्ट सिनोनिम पे कंप्राइज कर रहे हैं और 10 जो MCQs है वो एंटोनिम्स हैं। यानी आपकी वोकेबलरी जब इन्हांस होगी, उसके वर्ड्स आप देख सकते हैं जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स में हैं, लाइक फेबिजियस, एक्यूबेशन, लेविडेट, तो ये सारे न्यू वर्ड्स हैं जो हम पहले जनरली नहीं पता होता। लेकिन जब आप CSS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं
तो फिर जो है वो आपको इस तरह के वर्ड्स के साथ डील करना आना चाहिए, और फिर ये सारे आप करेंगे तो ही आपको आएंगे, ठीक है। तो 20 MCQ जो हैं वो हर साल प्रेस एंड कंपोजिशन के पेपर में इसी तरह से आते हैं, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। नेक्स्ट इसका थ्योरी पोर्शन देखें तो देखें किस कदर लॉन्ग जो है वो पैराग्राफ दिया हुआ है प्रेसी के लिए। 2023 में एज़ कम्पेयर टू दिस जो था वो शॉर्टर पैराग्राफ था, बट नाउ यू कैन सी देयर इज़ अ ह्यूज पैराग्राफ, सो यू हैव टू रीड इन गिवन टाइम, यानी जितना आपका पेपर का टाइम है उसी टाइम के अंदर आपने मैनेज करना है। ये नहीं कि आप एक क्वेश्चन पे ही बैठे रहें, उसे बार बार रीड करते रहें। तो ये तभी आप जल्दी कर सकेंगे जब आपकी रीडिंग प्रैक्टिस होगी और क्रिटिकल थिंकिंग होगी, यानी आप चीज़ों को पढ़ें, समझें और फिर उसको आंसर करें, और ये प्रैक्टिस से ही चीज़ें आती हैं, सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन एट द एंड। यू कैन सी ये भी बहुत बड़ा जो है पैराग्राफ है, आप इसको रीड करेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस को समझेंगे और फिर उसका आंसर कर सकेंगे। नेक्स्ट, करेक्ट ओनली 5 फॉलोइंग। ये सेंटेंस करेक्शन होता है बेसिकली, कि डिफरेंट सेंटेंसेस दिए हैं उसमें कोई ना कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, ग्रामेटिकल, यानी कहीं पे प्रपोजिशन सूटेबल नहीं लिखी होती, कहीं पे उन्होंने जो है वो ज़्यादा पंक्चुएशन मार्क्स लगाए होते हैं, कहीं पे इन्फिनेटिव का इशू होता है, कहीं पे नाउन सूटेबल नहीं होता, ठीक है, या फिर टेंस का होता है कि यहाँ पे अगर कहीं वो विल शेल यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर देते हैं। तो वो आपने सेंटेंस को देखना होता है प्रॉपर्ली कि ये किस तरह से ठीक हो सकता है। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोज़ में हम इस पर वीडियोज़ बनाएंगे यूट्यूब पर कि किस तरह से जो ग्रामर के रूल्स हैं उनको हम यूज़ करते हुए इन सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, पंक्चुएट द फॉलोइंग टेक्स्ट वेयर नेसेसरी। एज यू नो पंक्चुएशन मार्क्स में कोमा, फुल स्टॉप, हाइफन, पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, इन सब का ध्यान रखा जाता है। सो उसके अकॉर्डिंग ये हम करते हैं। फिर री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ओनली 5 फिलिंग इन द ब्लैंक्स अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन। लेकिन प्रपोजिशन का भी मेजर पार्ट है। डिफरेंट 8 दिए गए हैं आप लोगों को सेंटेंसेस, लेकिन 8 में से आपने 5 को करेक्ट करके री राइट करना है। नेक्स्ट है पेयर ऑफ वर्ड्स डिफरेंट, सो वो भी आपने कोई से 5 करना है। और फिर लास्ट क्वेश्चन होता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, तो इसको पढ़ के आपने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है। सो what we will cover in our coming series, we will break down each part of the paper, from crafting a flawless precis to building a strong vocabulary to perfecting your grammar and writing style in perfect way. So you have to stay with us as we simplifying the complex material step by step, making your CSS journey more smoother and more successful. So subscribe to the Competitive Scholar my channel and let's get started. Thanks for listening. Allah Hafiz.